Our today's class is for 12th. You know our subject is geology, earth science. The topic for class 12th today is mineral wealth of Jammu and Kashmir UT. So Jammu and Kashmir is well developed with forests and water resources, you know. However, some deposits of mineral fuels, metallic and non-metallic minerals are also found in this Union Territory of Jammu and Kashmir. Some of them, if we try to know the minerals or wealth of Union Territory of Jammu and Kashmir, including Ladakh Union Territory, because uh, before 2019, these three were the parts of one state. Now, the Ladakh is the one union territory and J&K is the other. So, organic, when we see organic ores first, these organic ores are found in the Ladakh and it is used in especially as a medicines in the form of ore known as orpiment ore. What is this orpiment? Basically, it is orange yellow in color and it contains organic sulfide mineral. These organic sulfide minerals are especially found in volcanic fumaroles. Volcanic fumaroles are the fumaroles which are found on the opening of or the open spaces in the volcanoes. These are known as fumaroles, in openings in the volcanoes, and these organic sulfide ores solidify around these openings of the volcanoes. Number second is bauxite. Bauxite, when we see, bauxite is the ore of aluminium. Millions of tons of bauxite is found in associated with nummulitic limestones of Riyasi, Salal and Poonch areas of Jammu. So, when we try to understand, it is used for manufacturing of utensils, refractive bricks. You know, we have discussed this bauxite or aluminium we are using in our day-to-day life for different uses in machineries and other different equipments which we use for the purpose of our life purposes. So when we see what are these nummulitic limestones, they are large lenticular fossil type minerals or fossils. These are coil shaped, numerous. They have numerous coils type of minerals or fossils, and they are bulged on the both sides. In other words, they are convex on shape in both the sides. And these nummulitic limestones are have association of this over bauxite. So when we see these type of fossils which contain bauxite, they are found in Riyasi, Salal and Poonch areas of our Union Territory of Jammu area. So next is borax. Borax is found in Sokar Lake in Ladakh. So borax is also found in Ladakh in the lake Sokar. Experts have revealed that tons of borax are annually deposited in this lake Sokar. So borax is used in boric acid and other medicines. As you know, boric acid have various uses. It is also a non-toxic for humans. It is used as first aid, this boric acid, for aging, for wounds, healing the wounds, for irritation, when irritation in the eyes, it is used as with water, and for other medicine. It is also used for cleaning the clothes and removing the stains in the clothes, and it also used for the pest control. So borax has so many uses. It is found in Sokar Lake of Ladakh. Bauxite is found in Riyasi, Salal, Poonch, and this organic is found in also in Ladakh. You will try to understand easily in a way. ये जो मिनरल वेल्थ हमारे यूटी जम्मू एंड कश्मीर की है, हमारा जम्मू कश्मीर जो है वेल डेवलप्ड, वेल एंडोर्ड है किन चीज़ों से? फॉरेस्ट से, वाटर रिसोर्स से। स्पेशली हम जब का बात करेंगे यहाँ के फॉरेस्ट रिसोर्सेज की,
बहुत सारे फॉरेस्ट है जो हमें प्रोवाइड करते हैं वुड, टिम्बर एंड फ्यूल, 3-4। और हमारे फॉरेस्ट्स हमें जड़ी बूटियां भी देते हैं, बहुत सारे मेडिसिन की में निकलते हैं यहाँ, इनमें से हर्ब्स निकलते हैं। इसी तरह हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है JNK के, बहुत सारे वाटर सोर्सेज हैं, ये स्प्रिंग्स की शक्ल में, जो रिवर्स का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं बाद में, और जिनकी वजह से हम पावर प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे इस्तेमाल में लाते हैं। नो डाउट कि कुछ डिपॉजिट्स है हमारे पास जिनमें फ्यूल डिपॉजिट है या कोल है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। कुछ अगर हम बात करेंगे पहले 3 मिनरल्स की, इसके साथ साथ हम नेक्स्ट क्लास में और भी बहुत सारे डिस्कस करेंगे, इनके लिए बहुत सारे क्लासेस हमें दरकार है। हम कोशिश करेंगे यहाँ 3 मिनरल्स को जानने की, आर्सेनिक और बॉक्साइट और बोरेक्स। मैंने बताया आपको ये जो आर्सेनिक है ये लद्दाख में है, हमें फाउंड हो जाता है, पाया जाता है, लद्दाख में मिलता है, हमें अवेलेबल है। ये मेडिसिन के लिए किस शक्ल में, और पिगमेंट जो हमारे पास और है ऑरेंज येलो का बहुत खूबसूरत सा और दिखाई दे रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड मिनरल है ये एक्चुअली इस और में। ये वॉल्केनिक फेमिरोल्स जहां जहां पे है, फेमिरोल्स और द ओपनिंग्स in the volcanoes where from the sulfide gases or sulfur gases comes out, with the result around the fumaroles these are pigmented minerals or arsenic sulfide solidifies in the color of orange yellow color. So ये इनके इर्द गिर्द ये फेमिरोल सॉलिडिफाई हो जाते हैं इन ओपनिंग्स में, जिन जहां से सल्फर गैसेस निकलते हैं इन फेमिरोल से, इन ओपनिंग से, वॉल्केनिक ओपनिंग से, और उसी को हम आर्सेनिक सल्फाइड मिनरल कहते हैं जो ऑर्पिमेंट कहलाता है। इसके बाद जब बॉक्साइट की बात करें, मिलियंस ऑफ टन जो बॉक्साइट है एसोसिएट होता है किनके साथ, न्यूमलाइटिक लाइमस्टोन। ये न्यूमलाइटिक लाइमस्टोन्स क्या होते हैं, ये न्यूमरस कॉइल शेप, जैसे न्यूमरस कॉइल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं, कॉइल शेप्ड होता है। ऐसे लाइमस्टोन्स है जो लेंटिकुलर टाइप, मींस लेंटिकुलर फॉसिल होता है, लार्ज लेंटिकुलर फॉसिल्स होते हैं, छोटे बड़े बड़े। इनके अंदर क्या होता है, दोनों साइड लेंटिकुलर की, जो मतलब लेंटिकुलर का माने जो है कि दोनों साइड में इसकी जो शेप है वो कन्वेक्स है। जैसे हम कोई जिस तरह हम अपने नाश्ते में सवेरे जो पूरी खाते हैं, उस पूरी के दोनों साइड में वो बल्जिंग जो दिखाई दे रही है, उसी तरह ये न्यूमलाइटिक लाइमस्टोन बल्जिंग टाइप होती है, लेकिन कॉइल शेप्ड होती है। ये फॉसिल है, इसमें मौजूद होता है बॉक्साइट, जो हमें रियासी, सलाल, पुंछ एरियाज जो जम्मू में हमारे हैं, ये इलाके, ये हिस्से, वहां से ये हमें बॉक्साइट ज्यादा मिल जाता है, अवेलेबल है। ये किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं, यूटेंसिल्स में, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स में। हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी इसके इस्तेमाल है जो हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने देखा है बहुत सारे एल्युमिनियम के शीट्स या रैपर्स इस्तेमाल करते हैं एल्युमिनियम के, या वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या बाकी इक्विपमेंट्स में, जैसे मशीन्स होते हैं हमारे, उनमें हम बॉक्साइट का इस्तेमाल करते हैं इन द शेप ऑफ एल्युमिनियम। इसी तरह बोरेक्स जो हमारा है हमारे स्टेट में, ये सोकर लैक, जो लद्दाख में सोकर लैक है वहां पे बोरेक्स है। एक्सपर्ट्स ने ये रिवील किया है कि टन्स ऑफ बोरेक्स, एक साल में बहुत सारे टन बोरेक्स के डिपॉजिट हो जाते हैं इस सोकर लैक के इर्द गिर्द या सोकर लैक के सरफेस पे। ये जो बोरेक्स है ये हम इस्तेमाल करते हैं बोरिक एसिड या बाकी मेडिसिन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया बोरिक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं, स्पेशली जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे एज ए फर्स्ट एड, क्योंकि ये ह्यूमंस के लिए नॉन टॉक्सिक होता है, इसलिए ह्यूमंस इसको आसानी से पानी के साथ मिला के पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। कभी पानी में डाल के 1 चम्मच 2-4 कप पानी में डाल के आंखों पे भी लगा सकते हैं, ताकि इरिटेशन अगर हो वो खत्म हो जाती, या जख्म कहीं पे हो हीलिंग के लिए, या एचिंग कहीं पे खुजली वगैरह, उसमें सब
चीज़ों में ये बोरिक एसिड एज ए फर्स्ट एड इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ये बोरिक एसिड हम पेस्ट कंट्रोल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी अहम जो इसका इस्तेमाल बोरिक एसिड का है, हम अपने कपड़ों को जो स्टेन्स होते हैं, दाग होते हैं, उनको निकालने के लिए, क्लीन करने के लिए बोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। बोरिक एसिड बहुत सारे केमिकल्स के साथ मिला के इस्तेमाल हो जाता है। लिहाजा ये कुछ अहम मिनरल्स थे जो मिनरल वेल्थ ऑफ J&K यूनियन टेरिटरी में आते हैं, और इनकी जगह कहाँ कहाँ पे मिलते हैं हमें, और इनका थोड़ा बहुत यूज़, हमें लोकेशंस का खास कर ख्याल रखना है इसमें, इन मिनरल्स की लोकेशन कहाँ कहाँ पे है अवेलेबल। So as you know, in our next class we will try to understand other minerals which are in our wealth of Union Territory of Jammu and Kashmir.